Very good morning, dear students. Today I am going to explain you Unit 5th and the Section 3rd of this unit, Kausani, an unusually attractive town. Dear students, this place is a very famous place and many people go there to visit this place, and it's a very beautiful place. And the scenic beauty I will explain you in this lesson. It is very attractive town and unusually attractive town. What makes कोसानी so attractive? Let's read and find out. अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो कोसानी एक प्लेस है वो किन चीज़ों के कारण बहुत अट्रैक्टिव है और क्यों फेमस है. कोसानी is situated at a height of 6,075 feet in the central Himalayas. हिमालय के सेंटर में लगभग 6,075 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेस स्थित है. It is an unusually attractive little town. Dear friend, this is a very little town, but it is very attractive. It covered just about 5.2 square meter, and it has situated on the central Himalayas, but it has spreaded its beauty approximately 5.2 square kilometer. It lies north of Almora in Uttarakhand's picture से कुमाऊँ रीजन में बहुत सारे जो पिक्चर्स है उत्तराखंड के, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है. कोसानी प्रोवाइड्स अ 300 किलोमीटर वाइड ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ द हिमालयाज. Dear student, when you will go there and you will visit this place, then it would capture your breath at the time, and it would be seize your breath for a moment, because the scenic beauty is very beautiful up there, and it is very beautiful place which attracts everyone, every tourist, and many people will visit there and go there to enjoy the beauty of this natural place. It is the most striking aspect of this place, and this is the very famous place which has the scenic beauty that I told you, and it has many aspects by which we can visit this place and we can enjoy all the places of there. Snow-capped peaks are spread in a stately row. Dear student, this place is covered with snow, and there are many peaks which are covered with the snow, and the peak looks like a cap with the peaks are covered with the cap of the snow. So it looks very beautiful. They stare at you in silvery white majesty, and this place is very beautiful, and it looks like a silver majesty there. The most famous peak on view is नंदा देवी जो है वहाँ का बहुत फेमस पिक है. The second highest mountain in India, and this is the second highest mountain which is very famous in India. It is situated at a height of 645 feet. Dear friend, ये जो प्लेस है लगभग 25,645 फीट पर सिचुएटेड है, एंड 36 miles away as the crow flies. मीन आप सब जानते हो कि जो क्रो है बहुत ऊंचा उड़ते हैं, और ये क्रो का जो प्लेस है जितना सिचुएटेड होता है, जितना दूर वो जा पाते हैं उतना ये स्प्रेडेड है. The other famous peaks on view are चौखंबा, और यहाँ पे दूसरे पिक्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिस चौखंबा कहा गया है, जो कि 23,420 फीट है, एंड त्रिशूल इज 23,360 फीट अबोव. Then there are also नीलकंठ, नंदागुंटी, नंदाघाट and नंदाकोट. Every place is famous as like the Nanda name. On a clear day, the blue of the sky makes a splendid background to these peaks. Dear students, हम सब जानते हैं कि जो पिक्स होते हैं या जो माउंटेन्स होते हैं, अगर उनके पीछे उनका जो बैकग्राउंड है वो अगर ब्लू कलर का हो, या फिर ब्लू कलर का जो पूरा आसमान दिखाई देता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में. जो सीनरिक ब्यूटी होती है बहुत ही ट्रेमेंडस लगती है.
तो जब भी वहाँ पे क्लियर डे होता है, मीन्स जब आसमान साफ होता है, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर वो जो सीन है वो दिखाई देता है, और उसी का एंजॉय करने के लिए लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं। एट सनराइज एंड सनसेट व्हेन द कलर चेंजेस टू अ गोल्डन ऑरेंज, और जब भी सनराइज होता है, सनसेट होता है, उस वक्त जो सन है उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर का और गोल्डन ऑरेंज कलर का हो जाता है। द सीन गेट्स इच्ड इन योर मेमोरी, और जो सीन होता है हमारी मेमोरी में इस तरह से ग्रैस्प हो जाता है कि हम उसके कभी भी भुला नहीं पाते। When Gandhiji visited this place in 1929, its scenic beauty held him spellbound. मीन्स जब गांधी जी ने इस प्लेस को विजिट किया था 1929 में, तब गांधी जी के पास इस प्लेस की ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे। बहुत ही इम्प्रेसिव ब्यूटी थी, स्प्लेंडेड थी, और इसीलिए कंप्लीटली उनका जो अटेंशन था वो इस प्लेस के ऊपर चला गया, और वो उसको पूरी तरह से उन्होंने उसका एंजॉयमेंट किया। ही नेम्ड इट द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, और जब उन्होंने उस प्लेस को देखा तब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि वो स्विट्ज़रलैंड में है, ऐसा फील हुआ उन्हें, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे देश का स्विट्ज़रलैंड है। ही प्रोलॉन्ग्ड हिज 2-day stay of 14 days, 2-day stay to 14 days, और वो इस प्लेस पे रहने के सिर्फ 2 दिन के लिए ठहरने आया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन की जगह पर पूरा 14 डेज़ वहाँ पर स्टे किया, क्योंकि वो उसकी जो सीनरिक ब्यूटी थी उससे इतना इम्प्रेस्ड थे कि उन्हें वो बहुत ही अच्छी लगी, और इसलिए उन्होंने 2 डेज़ का जो टूर था वो 14 डेज़ का कंप्लीट किया। गिविंग हिम टाइम टू राइट अ बुक अनाशक्ति योगा जो है उस पर उन्होंने एक बुक लिखी, और वो जो बुक है उन्होंने वहीं पर स्टे कर लिखी थी। द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग वॉज ओरिजिनली अ गेस्ट हाउस ऑफ द टी स्टेट। ये जो प्लेस था जहाँ पे ओरिजिनली वो स्टे किया था, जो उन्होंने, वो वहाँ पे गेस्ट हाउस था जिसे जो कि टी स्टेट था। इट वॉज रीनेम्ड अनाशक्ति आश्रम, और उस गेस्ट हाउस में जो टी स्टेट था वहाँ पर उन्होंने बैठ कर वो बुक लिखी थी, और इसीलिए उसका नाम चेंज करके उन्होंने अनाशक्ति आश्रम बन गया, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अनाशक्ति योगा, और वो उस प्लेस पे आके लिखी वो जो बुक थी वो बहुत फेमस हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा अनाशक्ति योगा, अनाशक्ति आश्रम। कौसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का कौसानी जो है बर्थ प्लेस है, वहाँ उनका बर्थ हुआ था। इंडिया पोएट लिरिट इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स इंस्पायर्ड मेनी ऑफ हिज पोएम्स, और सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी बहुत सारी पोएम्स लिखी है जिसमें उन्होंने इसकी सीनरिक ब्यूटी का जिक्र किया है और बहुत ही अट्रैक्टिव बताया है। Its tea gardens mingles with dense pine forest and fruit orchards. यहाँ पे के जो गार्डन्स है, जो टी गार्डन्स है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो घने घने पाइन के जो फॉरेस्ट हैं और फ्रूट के जो ऑर्चर्ड से बगीचे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। द एरिया इज आल्सो होस्ट टू मेनी फेयर्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज, और ये जो एरिया है ये इतना बड़ा है कि जहाँ पे बहुत सारी सेरेमनीज या बहुत सारे फेयर्स यानी मेले लगाए जाते हैं। इफ उत्तराखंड इज द अबॉर्ड ऑफ गॉड्स, कौसानी इज गॉड्स ऑन बैकयार्ड। अगर उत्तराखंड जो है वो भगवान की जो प्लेस है, तो कौसानी जो है वो गॉड्स का ऑन बैकयार्ड है, मतलब भगवान का ही आंगन है। अगर हम कहें कि अगर भगवान वहाँ रहते हैं तो जो कौसानी है वो भगवान के घर का आंगन है। देयर इज़ नो ट्रैफिक, नो वन इज़ इन अ हरी। वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, इवन वहाँ पे कोई भी जल्दबाजी में नहीं रहता है, कोई भागदौड़ की ज़िंदगी नहीं जीता है। If serenity could be put on a canvas, the picture would resemble कौसानी। अगर हम उसकी सेरेनिटी को कैनवास पर दिखाने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस कौन सी निकलेगी, कौसानी, और वो उसको रिसेंबल करेगी। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज a very little essay type
in which I have explained about the Kosani place and which is situated in Uttarakhand, and I think you all have understood and you all have felt that what the beauty it has spread in India, and you know well that Gandhiji also has told that it is like a Switzerland of India. It is a very beautiful place, and I think you must visit once in your life. So, dear student, this was a little lesson of your book, and I think you all have enjoyed it. And thank you, dear students.